Good afternoon, everyone. So today is the first class of our subject from second semester of 5IDC BA LLB from Dr. VRK College of Law, and the subject is psychology, subject number paper number 3. Okay. So in this subject, we'll be having 5 units. So first unit will be covering regarding the definition and scope of psychology and other topics. The second will be development psychology. The second will be developmental psychology. Okay, and the third will be social psychology and its details. The fourth will be communication, nature and types of communication, and conflict management and all that. The fifth unit will consisting of counseling definition, nature and scope of counseling, need of goals and counseling, relationship, attending skills, listening skills and all that. So these are the 5 units that we have to cover in this subject of psychology, second semester, first year of 5IDC BA LLB. So starting with the introduction of psychology. Write your side heading, introduction of psychology. The very first side heading of the first unit. Introduction to psychology. Correct? Psychology is the scientific study. Psychology is the scientific study of human behavior and mental process. Psychology is the scientific study of human behavior and mental processes. So what does it say? Psychology is something, it is the scientific study of the human behavior, how human behave, okay? And mental processes, how the human's mentality processes in different situation, अलग-अलग situation में कैसा human का mentality process करता, that is about psychology. Okay, the word psychology comes from two Greek words, quotation में लिखिए psyche, 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 which means mind or soul, mind or soul, and logos, 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 which means study. Okay, the word psychology comes from the two Greek words. The number one is psyche, which means mind or soul. Psyche means mind or soul. Logos means study. ठीक है, तो माइंड और सोल की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी. आई बात समझ में? नेक्स्ट, therefore psychology literally means the study of the mind, means the study of mind. Psychology means study of mind. ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल भी लिख ले सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करना है. In modern times, psychology is defined as the scientific study of behavior, and mental activities. बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इट्स ए साइकोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियर इंक्लूड्स
Yes. Behavior includes all actions or reactions. Behavior includes all actions or reactions of a person that can be observed, such as speaking, walking, walking, crying, laughing, or committing an act. ठीक है, साइकोलॉजी में बिहेवियर रीड करना रहता। तो व्हाट इज बिहेवियर? एक पर्सन का बिहेवियर क्या है? उन्हें कैसे बात कर रहा, कैसे हंस रहा, कैसे रो रहा। समय परसों में बताया भाई, कोई छोटी तकलीफ है तो छोटा रोते, कोई भी चीखा मार मार के रोते, बोले इतना क्यों रिएक्शन दे रहे। छोटा जोक है तो थोड़ा हंसना, छोटे जोक को बहुत ज्यादा हंस रहे, जिसका जोक की डेंसिटी कम है और रिएक्शन ज्यादा है, तो बोलेंगे कि ओवर रिएक्शन हो रहा है। समझे बात को? तो वॉक कैसा कर रहा, वॉकिंग कैसा कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा, सीधा चल रहा। समझे? थोड़े लोग रहते कुछ ऐसा 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 करके चलते, तो उनको देख के, इनकी वॉकिंग देख के समझ जाते हैं इन्होंने कुछ हटे हुए दिख रहे। समझे बात? तो स्पीकिंग, वॉकिंग, लाफिंग, क्राइंग, ऑल दीज आर बिहेवियर्स। एक्शन और रिएक्शन दोनों में भी, एक्शन में भी क्या है और रिएक्शन में भी क्या है। एंड और कमिटिंग एन एक्ट भी लिखे, देखिए। तो कमिटिंग एन एक्ट, कोई भी काम कर रहा समझो, हाउ ही इज डूइंग दैट, प्रोफेशनली कर रहा, डोमेस्टिक कर रहा, और कुछ हिसाब से कर रहा, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा, ऐसे ही कर दे रहा। ठीक है, तो ये कमिटिंग एन एक्ट, ये पूरे क्या है, ये सारे के सारे बिहेवियर। अभी लिखा है ना, पूरे बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब चलना फिरना, बैठना उठना, रोना धोना, सब बिहेवियर में आता। ठीक है, अगर कोई भी इंसान ये नॉर्मली करा तो ही इज नॉर्मल, अगर ये सब चीजें अबनॉर्मल कर रहा तो फिर उसको अटेंशन देके उसका इलाज कराना। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड internal activities such as thinking, remembering, feeling emotions, imagining and making decisions. ठीक है, रिमेंबरिंग, फीलिंग इमोशंस, इमेजिनिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। मेंटल प्रोसेस यानी मेंटल प्रोसेस इज नॉट इन एक्शन, वो माइंड में चलता। ठीक है, मेंटल एक्शन इज इन माइंड, बिहेवियर इज इन एक्शन। बिहेवियर आपका एक्शन में दिखता, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। मेंटल प्रोसेस आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं, वो फिजिकल थोड़ी ना है, वो दिमाग के अंदर है। उसका क्या क्या प्रोसेस है? थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है, हाउ डू यू थिंक, आपका मेंटल प्रोसेस में देखना आपका हाउ डू यू थिंक। ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबरिंग, अच्छे से याद रखे, रिमेंबरिंग एंड रिटेनिंग, अच्छे से रिटेन करते हैं, भूल जाते, बार बार भूलने की बीमारी है। आई बात समझे? नेक्स्ट, फीलिंग इमोशंस, अगर कोई भी एक इवेंट होता लाइफ में तो उसके इमोशंस कैसा प्रेजेंट करना, वो दिमाग में आता पहले। ठीक है, हाउ डू यू रिएक्ट टू द इमोशंस, फीलिंग इमोशंस। नेक्स्ट इज इमेजिनिंग, हाउ डू यू इमेजिन, इमेजिन कहां से होता, इज दैट ए मेंटल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस? मेंटल प्रोसेस, वो दिमाग में चलता कि कोई चीज इमेजिन करना, मेरा एम है, मेरा विजन है, विजन को इमेजिन करना, कोई चीज में सक्सेस हासिल करना, वो इमेजिन करना। ठीक है, वो आपके मेंटल प्रोसेस में आता। नेक्स्ट, मेकिंग डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग कितना आपका परफेक्ट है, क्या डिसाइड कर रहे हैं आप, एनालाइज क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज को आप एनालाइज कैसा करते, उसको डिसाइड कैसा करते। ठीक है, आप ये डिसाइड नहीं करना कि मैं पासिंग मार्क्स ला के पास होना, नहीं, आप ये डिसाइड करना कि एटलीस्ट जो है 70% में मार्क्स लाऊं या 80% मार्क्स लाऊं,
तो उसके हिसाब से कितना पढ़ना है, कोई जॉब है, बिजनेस है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसमें डिसीजन कैसा लेना, तो डिसीजन मेकिंग आपका मेंटल प्रोसेस है, दिस कम्स अंडर साइकोलॉजी। नेक्स्ट, साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड why people behave in certain ways. Psychology tries to understand why people behave in certain ways. And what factors behave in certain ways. And what factors influence their actions. ठीक है, साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव इन सर्टन वेज, ये अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। एक इवेंट है, कोई भी एक इवेंट हुआ तो एक ह्यूमन एक तरीके से बिहेव करता, दूसरा ह्यूमन दूसरी तरीके से बिहेव करता, अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट इवेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज मेंटालिटी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कोई ज्यादा ही खुश होता, थोड़ा कम खुश होता। ठीक है, तो साइकोलॉजी ट्राइज टू लर्न हाउ पीपल बिहेव इन सर्टन वेज एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर एक्शंस। कौन से फैक्टर्स है जो उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता, कौन से एक्शंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी हेल्प्स explain why a person becomes angry. For example, psychology helps explain why a person becomes angry. ठीक है, for example, psychology helps explain why a person becomes angry. मेरी गाड़ी की डिक्की में सूट है, देखो ले लेके। ठीक है, becomes angry. Why someone may lie? झूठ क्यों बोल रहा है, बोलता मैं। Why someone may lie? Why people develop habits? And why individuals sometimes commit habits? And why individuals sometimes commit crimes. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या बताया, साइकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल बिकम एंग्री। ये बार बार गुस्से में क्यों आ रहे, तो अब जो भी इरिटेट होता ना गुस्से में, तो उनको बिठा के अगर हम बात करें तो समझ में आता कि व्हाई इज गेटिंग एंग्री, कि उनका नेचर वैसा है या फिर रिसेंट टाइम्स में उनके साथ कुछ बुरा हो गया। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में उनका कुछ लॉस हो गया, रिसेंट टाइम्स में उनके साथ कुछ बुरा हुआ, उनको कुछ बोल दिए, उनको कोई कुछ बुरा बोले, उनकी पसंदीदा चीज खो गई, गुम गई, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना था वो नहीं आए, तो वो इवेंट होने के बाद अगर आप उनसे बात करेंगे तो विदाउट एनी रीजन दे गेट इरिटेटेड एंड एंग्री। तो समझना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, इनका वजह मालूम करो। अगर उनसे बैठ के बात मार दो ना, बोलते नहीं भाई 2 दिन पहले ऐसा हो गया, 1 दिन पहले ऐसा नुकसान हो गया मेरा, मैं ऐसा को सोचा था, मेरी चीज गुम गई, ऐसा कुछ तो भी, तो उससे क्या होता, कोई अपनी पसंदीदा चीज खो जाने से ये होता कि मेंटालिटी जो है ना एक सैडिस्ट बन जाती है, डिप्रेशन में जाती, तो वो क्या होता, वो एंग्री होना शुरू हो जाते, फिर लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ठीक हो जाते हैं, मगर एट टाइम्स ऐसा गुस्सा ना। मगर और एक बात, कुछ लोगों को विदाउट एनी रीजन भी ऑलवेज गुस्से में रहते। ठीक है, ऐसे कई लोगों को देखे होंगे। हाँ, आधा सुनो, तो एक तो बात ये हो गई कि कुछ लोग टेम्पररी रहते हैं एंग्री, कुछ लोग जो है ना ऑलवेज गुस्से में रहते। देखो आप, विदाउट एनी रीजन, अरे क्या हुआ भाई, रीजन भी कुछ भी नहीं है, हमेशा इसी रहता। अब आप देखो, कोई भी आपके कोलीग्स है या आपके फ्रेंड्स है या स्कूल के दोस्त या कॉलेज के दोस्त या रिलेटिव्स या कहीं ना कहीं आदमी ऐसा निकलता है, हमेशा गुस्से में रहता, हमेशा चिड़चिड़ा रहता, हमेशा सैडिस्ट रहता, तो वो उनका नेचर रहता वैसा, वो नेचर ऐसा बना लेते अपना, और उनकी इमेज पूरी सोसाइटी में वैसी रहती कि भाई इन्हें बस
इससे बात करे तो ही नहीं गुस्सा करता है हमेशा, इसके नेचर अच्छा नहीं है, अच्छी बात कभी नहीं कर सकता, ना उसके दोस्त उसके आसपास रहते, ना उसके रिलेटिव्स रहते, ना फैमिली मेंबर्स, कोई भी उसके साथ में जानते भी नहीं हमेशा इसलिए। तो वो नेचुरल फितरत वाले एक अलग ही रहते, मगर कभी कभी ऐसे लोग जो टेम्पररी जो एंग्री रहते ना, तो उनसे बैठ के अगर बात करें तो विथ रीजन दे गेट एंग्री, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या बताया मैं, वाई समवन विल लाई, लाई क्यों, झूठ क्यों बोलते, तो कुछ लोगों को बहुत शौक रहता झूठ बोलने का, झूठ बोलना और गोल फिराना बहुत अच्छी आदत आती, गोल फिरा देंगे भाई, परफेक्ट बात नहीं करना, गोल फिराना, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, अरे भाई परफेक्ट एग्जैक्ट बात बोल भाई। किसी को पूछे भाई 5+5 कितना होता, तो उन्हें 10 नहीं बोलेंगे बराबर, नहीं 8+2 मिला है तो कितना होता, वही 5+5 होता बोलता, अरे भाई 10 बोल देना डायरेक्टली, आई बात समझ में। तो कुछ ऐसे लोगों की मेंटालिटी है बिल्कुल जो है ना, झूठ बोलने में एक्सपर्ट रहते, और इतना एक्सपर्ट रहते कि सच्चा परेशान हो जाना, झूठे इतने एक्सपर्ट, उनका बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी नजर इतनी परफेक्ट रहती कि सच बोलने वाला भी परेशान हो जाना, इतना परफेक्ट कैसा झूठ बोल रहा भाई, एविडेंसेस को आते ना तो ऐसे ही करते हो लोग, तो जो सच वाकई उन्हें आई विटनेस है तो उन्हें सोच में चल जाना, अरे मैं शायद गलत देखा हूँ भाई, इतना अच्छी तरीके से बोला, शायद इन्हीं सच्चा होगा, तो परफेक्ट इन लाइंग, और उनको मजा आता उस चीजों में, ठीक है। तो अपन वो एनालाइज करना, भाई ने क्यों झूठ बोल रहा, बातों में समझ जाना, बात करते करते समझ जाना कि भाई क्यों झूठ रहा, इसको मजा आ रहा, या फिर किसी को फिराने की जगह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे एक झूठ छुपाने 100 झूठ भी बोलते, तो सब आपको हमारे को एनालाइज करना रहता, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बताया, वाई सम पीपल डेवलप हैबिट्स, किसी की अच्छी आदतें किसी की बुरी आदतें, वाई क्यों डेवलप करते हो, किसी दोस्ती रहती है, किसी को कोई सिबलिंग्स रहते हैं, या कोई अड़ोस पड़ोस में, उनके जरिए जो है हैबिट्स डेवलप करते, एंड वाई सम इंडिविजुअल कमिट क्राइम। क्रिमिनल साइकोलॉजी में आपको ये मालूम होना चाहिए, क्रिमिनल्स की अगर साइकोलॉजी का हम पढ़ेंगे तो कई सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो क्राइम करके एंजॉय करते हैं, उनको क्राइम करके एक पछतावा भी नहीं होता, दे एंजॉय कमिटिंग क्राइम, उनको मजा आता, तो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ना, उनको समझना हम क्रिमिनल्स को, ठीक है। चलिए, फॉर लॉ स्टूडेंट्स साइकोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, for law student psychology is very important because law deals with human behavior, law deals with human behavior, ठीक है। हमारा जो लॉ है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसीलिए लॉ स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉयर्स, जजेस and investigators, lawyers, judges and investigators often need to understand the intentions, often need to understand the investigation intentions. Lawyers, judges and investigators often need to understand the intentions, motives and mental state of individuals and criminals. Intentions, motives and understand the intentions, motives and mental state of individuals, ठीक है। तो लॉयर्स, जजेस एंड इन्वेस्टिगेटर्स कौन है, पुलिस वाले, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो इनको हमेशा क्या है मालूम, साइकोलॉजी के बारे में मालूम है ना, कि क्रिमिनल के बारे में, कंप्लेनेंट के बारे में मालूम, कंप्लेनेंट आके कंप्लेन करा, व्हाई ही इज कंप्लेनिंग, इज ही रियली ए अग्रीव्ड पर्सन जिसके ऊपर जुल्म हुआ, या फिर दूसरे को फंसाने के वास्ते नहीं कंप्लेन कर रहा, समझे। कंप्लेन्स मैक्सिमम क्या जाते हैं मालूम, दूसरे को सताने के वास्ते कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस वाले को अंडरस्टैंडिंग ना, उसको भाई कंप्लेनेंट आया कंप्लेन करने के वास्ते, तो वाकई इसके खिलाफ कोई जुल्म हुआ या फिर दूसरे आदमी को फंसाने की कोशिश कर रहा, वो मालूम है ना। जजेस को मालूम है ना व्हाई क्रिमिनल इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। लॉयर्स को मालूम है ना व्हाई दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई दिस क्रिमिनल्स आर एक्टिंग लाइक दिस, यानी उनके ब्रेन को, उनकी मेंटालिटी को और उनके बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइकोलॉजी helps explain criminal behavior
witness memory, confessions, witness memory, confessions, and decision making processes, in legal situations. Psychology helps in अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल का बिहेवियर क्या है. इसीलिए जेल्स में क्या होता है मालूम, इवन आफ्टर कन्विक्शन, अगर जो है कन्विक्टेड पर्सन का बिहेवियर अच्छा रहा ना, वेरी गुड रहा, तो उसका कन्विक्शन कम भी होता. ठीक है, रिपोर्ट जाती, क्या जाती रिपोर्ट, क्रिमिनल की रिपोर्ट जाती कि इसका बिहेवियर कैसा है. अगर उसका बिहेवियर अच्छा है देन उसका कन्विक्शन टाइम कम भी करते. दैट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन. आई बात समझ में. तो विटनेस मेमोरी, मेमोरी उसकी कितनी मेमोरी है, अच्छे से रिटेन करता, याद करता, वो समझना. कन्फेशंस, अगर कोई कन्फेस कर रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आदमी है जो क्राइम नहीं करा ऑन बिहाफ ऑफ अदर, क्रिमिनल क्या करता, भाई मैं तुझे 20 लाख रुपए देता हूं तो क्राइम कबूल कर लेता, तो उन्हें क्या करता, 20 लाख रुपए लेकर क्राइम कबूल कर लेता, जेल को भी जाके आता. तो जब उन्हें कन्फेस कर रहा कि आई हैव कमिटेड दैट क्राइम, तो आप एक तो विटनेस के तरीके से एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसको, उसकी साइकोलॉजी समझना कि वाकई ये आदमी क्राइम करने के काबिल का है, ये कर सकता, और ये क्यों कबूल कर रहा. तो उसकी आप मेंटालिटी रीड करे तो ही मालूम होता है कि कन्फेशन करेक्ट है या गलत है. एंड डिसीजन मेकिंग, सामने वाला क्रिमिनल हो या विटनेसेस हो, उनका डिसीजन मेकिंग क्या है, और वो सब प्रोसेसेस लीगल सिचुएशंस में आपको काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन लाइन पॉइंट्स लिखना है, दिख रहे पॉइंट्स, वो लिखना है. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, psychology is the study of how people think, feel and behave. How people think, feel and behave. ठीक है, ठीक है, feel and behave. Example number one, why a person becomes angry. Angry. Number two, why witnesses forgot details in court. Why witnesses forget details in court. Why people commit crimes. Next, why people react differently to the same situation. To the same situation. To the same situation. ठीक है, these are all questions studied in psychology. These are all questions studied in psychology. Next, for law students, psychology helps in understanding number one, criminal behavior. In understanding criminal behavior, 1. 2, witness reliability. अच्छा, okay. Number one, criminal behavior. Second is witness reliability.
reliability, reliability. Third, confessions and interrogation. Third, confessions and interrogation. Confessions and interrogation. ठीक है. Fourth, human decision making. Human decision making. Fifth, decision making. Fifth, mental illness and legal responsibility. Mental illness and legal responsibility.